ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کے سینیٹرز اور اراکین قومی اسمبلی نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ان کے چیمبر میں ہی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں بیرسٹر گوہر علی خان نے بانی پی ٹی آئی سے ان کے خاندان کے افراد اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ ہونے کا معاملہ اٹھا دیا۔ کہا کہ آپ سینئر سیاستدان ہیں، پہلے بھی ہماری مدد کرتے رہے، اب بھی ملاقات کے لیے کردار ادا کریں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی سے ملاقات کے لیے اسپیکر سے مدد کی درخواست کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات میں اسد قیصر، علامہ راجہ ناظر عباس، لطیف کھوسہ اور دیگر رہنما شامل تھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو پارٹی کے بنیادی مطالبات سے آگاہ کر دیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ بانی سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کروائی جائے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ وہ ہمیں کل تک جواب دیں گے۔ اپوزیشن اراکین نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے مطالبات نہ مانے گئے تو پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ اپوزیشن کا وفد پیر کے روز چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ غیر قانونی ہے، وہ میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت اصل میں ٹک ٹاک حکومت بن چکی ہے جس کا عوامی خدمت سے کوئی تعلق نہیں۔ نوشہرہ میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا حکومت کے طرز عمل قابل مذمت اور افسوسناک قرار۔ کہا اختیار ولی نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا اور وہ خیبر پختونخوا سے ایک مضبوط اور توانا آواز ہیں۔ خیبر پختونخوا میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہونا چاہیے، مگر صوبائی حکومت عوام کی مسائل کے بجائے دھرنوں اور غیر ضروری ہنگامہ آرائی پر توجہ دے رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ خصوصی سیکیورٹی پلان غیر معینہ مدت تک نافذ العمل رہے گا۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے راستوں پر 5 پکٹس پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ داغل جیل گیٹ 1، گیٹ 5، فیکٹری ناکہ، گورکھپور پر ناکے قائم کر دیے گئے ہیں جہاں نفری تعینات رہے گی۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی۔ 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز، خواتین پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے ہیں۔ آر ایم پی فورس، پنجاب کانسٹیبلری، تھانوں کے عملے سمیت 700 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات اہلکار ربڑ بلیٹس، آنسو گیس، ڈنڈو، شیلڈ، اینٹی رائٹ سامان سے لیس ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کے 10 افسران اور اہلکار تعینات، لفٹر اور قیدی وینز بھی موجود رہیں گی۔ ڈیوٹیوں کی براہ راست نگرانی ایس پی صدر کریں گی۔ والد کو گرفتار ہوئے 845 دن ہو چکے ہیں۔ پچھلے 6 ہفتوں سے انہیں مکمل بے خبری کے ماحول میں ڈیتھ سیل میں تنہا رکھا گیا ہے۔ بانی سے ان کی بہنوں کو ہر ملاقات سے روک دیا گیا ہے، حالانکہ عدالت کے واضح احکامات موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم خان کا والد سے متعلق ایکس پر بیان۔ کہا کوئی فون کال نہیں، کوئی ملاقات نہیں اور زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ میں اور میرا بھائی اپنے والد سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کر سکے۔ یہ مکمل اندھیرا کسی حفاظتی پروٹوکول کا حصہ نہیں، یہ ایک جان بوجھ کر کی گئی کوشش ہے تاکہ ان کی حالت کو چھپایا جائے اور ہمارے خاندان کو یہ نہ معلوم ہو سکے کہ وہ محفوظ ہیں یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں محفوظ اور بالکل صحت مند ہے۔ ہفتے میں ایک بار بانی پی ٹی آئی سے ان کی اہلیہ کی ملاقات بھی کرائی جاتی ہے اور جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ٹی وی اور اخبار کی سہولت موجود ہے۔ قیاس آرائیوں اور افواہوں پر جیل ذرائع نے وضاحت کر دی۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہے، باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی منگوائی جاتی ہے۔ ذرائع کے بھی بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق کرائی جاتی ہیں۔ اڈیالہ جیل کی حدود میں آنے والے ہر شخص کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اڈیالہ جیل کی حدود سے باہر کے معاملے کی جیل انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اڈیالہ سے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی، جب بھی آتی ہے ملک کے خلاف ہی آتی ہے۔ کے پی کے عوام کی جو مشکلات ہیں ان سے وزیر اعلیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی نے بھی جو احتجاج کا نمک حکومت پر ڈالنا ہے شوق سے ڈالیں۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، جہاں ہوگا انہیں ساتھ لے کر چلیں گے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ بھارت اپنے 8 گرے رافیل کی وضاحت نہیں دے سکا۔ بھارت پاکستان کے خلاف پراکسی وار لڑ رہا ہے، جب اس کو بے نقاب کریں گے وہ بھاگ جائے گا۔
पाकिस्तान की बेहतर खारजा पॉलिसी से ऑक्सफोर्ड से भारत भागने पर मजबूर हुआ। शहर कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में ले लिया। तफसीलात जानते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम खत्म करके जा रहे थे, तशद्दुद किया गया है, ये नहीं चलेगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कारकुनान ने बानी पीटीआई से मुलाकातों की बंदिश के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख समेत कई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले जाने वालों में दावा खान, मुअज्जम खान, यासिर बलोच, अनवर मेहदी, रजा यासिर समेत 2 दर्जन से जायद कारकुनान शामिल हैं। पुलिस ने खवातीन कारकुनों को भी हिरासत में ले लेकर मुख्तलिफ थाने मुंतकिल किया, जबकि अली आदिल शेख और दीगर रहनुमाओं को पेड़ी थाने ले जाया गया। पीटीआई रहनुमाओं ने इंदिया दिया कि अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने इजाजत के बगैर एहतजाज किया, जिस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हमशीरा अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। अलीमा खान ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक 24 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालती हुक्म उदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, तौहीन अदालत के मर्तकब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अलीमा खान ने अपनी दरख्वास्त में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अलीमा खान और वकला की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला है कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। हमने फैसला किया है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं चलने देंगे। उन्होंने भी कहा कि आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर भी और अडियाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। उन्होंने भी कहा कि अदालत हुक्म के बावजूद मुझे न दीगर रहनुमाओं को बानी से मिलने दिया गया, इससे पहले बानी की बहनों को मिलने नहीं दिया गया, उनको अडियाला रोड पर बालों से पकड़ा गया और उनकी बेइज्जती की गई। ये सब कुछ बानी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, बुशरा बीबी को निशाना बनाया जा रहा है। खबर यह है कि कौमी असम्बली का इजलास कोरम बहरान की नज़र हो गया। इत्तेहादी अरकान की अदम मौजूदगी के बायस कार्रवाई 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इजलास के आगाज़ पर ही रुकन असम्बली महबूब शाह ने नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त मांगी। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से इनकार पर महबूब शाह ने फौरन कोरम की निशानदही कर दी। गिनती कराने पर ऐवान में मतलूबा तादाद पूरी ना निकली और स्पीकर ने इजलास कोरम मुकम्मल होने तक मुलतवी कर दिया। 40 मिनट के वक्फे के बाद इजलास दोबारा डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, मगर सूरत हाल जूं की तूं रही। हाजिर अरकान की तादाद एक बार फिर नामुकम्मल पाई गई, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास 1 दिसंबर बरोज़ पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदल कर पख्तूनख्वा रखा जाए। एनपी ने 28वीं तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत को तजावीज़ अरसाल कर दी हैं। एनपी ने तजावीज़ दी कि आबी बिजली पैदा करने वाले सूबों पर वफाकी टैक्स ख़त्म किया जाए और उन सूबों में घरेलू सार्फिन के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट तक रेट मुकर्रर किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी ने तजवीज़ दी कि तंबाकू के काश्तकारों पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ और कच्चे तंबाकू का टैक्स मुकम्मल तौर पर सूबों को दिया जाए। एनपी का कहना था कि मुस्तकिल और आइनी बल्दियाती हुकूमतों को क़याम किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात हर 4 साल बाद कराने और इंतजामिया को बल्दियाती निज़ाम में मुदाखलत करने से भी रोका जाए। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में नौमुंतखब अरकान असम्बली ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। पंजाब असम्बली में नौमुंतखब MPAs की हल्फबर्दारी के दौरान अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की। हुकूमती बेंचों से भी शेर आया के नारे लगाए गए।
हल्फ उठाने वालों में नौ मुंतखब अरकान असम्बली मियां सुल्तान रांझा, अली हैदर नूर न्याजी, आज़ाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ने नौ मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। अपोजिशन के शोर शराबे में नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। हल्फ के मौके पर अपोजिशन के शदीद शोर शराबे से कान पड़ती आवाज़ सुनाई ना दी। अपोजिशन अरकान अपनी सीटों पर खड़े होकर डेस्क बजाते रहे। हुकूमती अरकान असम्बली ने अपोजिशन अरकान के नारों का भरपूर जवाब दिया। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज का कहना है कि मार्के हक के बाद अब वक्त है कि पाकिस्तानी मईशत को देखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम मईशत की बेहतरी के लिए कोशा है। अपने बयान में गौहर एजाज का कहना था कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मौशी तूफान से निकाला गया है। पाक फौज ने मार्के हक में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। जंग जीतने पर अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया भर में इज्जत बख्शी है। पाक फौज दिफाई तकनीकी पेशेवराना सलाहियतों से मालामाल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भरपूर सलाहियतों के मालिक है। सिंध हाई कोर्ट की आईनी अदालत ने 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजों की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी आईनी बेंच के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर दिया। हाई कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजों की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। दरखास्त गुजार बैरिस्टर अली ताहिर ने मौक़िफ़ अपनाया कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसातिम है। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को वज़ीर आज़म की सिफारिश पर नामजद किया गया। बाद 6 जजेस को नामजद करके उनकी तकर्रुरी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट बार के केस में जजेस को फरीक बनाने की इजाज़त दे चुकी है। अदालत ने वफाकी आईनी बेंच के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को नोटिस जारी करके नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली ताहिर ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर की है। दरखास्त में वज़ारत कानून व इंसाफ और पार्लिमानी अमूर, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियार ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत की है और आइंदा बजट में इस हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनियों पर लगने वाले सुपर टैक्स में कमी की हिदायत भी की है। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर होगा, यानी जितना मुल्क में टैक्स दंदगान बढ़ेंगे उतना ही टैक्स रेट कम किया जा सकेगा। राशिद लंगड़ियार ने कहा कि हुकूमत बड़ी कंपनियों और कारोबार पर सुपर टैक्स खत्म करने पर भी आमादा हो गई है और सुपर टैक्स मरहलावार कम करके बिलाखिर खत्म किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सुपर टैक्स में कमी और खात्मे के हवाले से IMF से भी बातचीत जारी है। अब खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सफ़र महफूज और आसान बनाने के लिए पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट में 60 साल बाद पहली बार 20 बड़े इस्लाही इक़दामात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ट्रैफिक के जदीद निज़ाम की मनसूबाबंदी, रोड सेफ्टी और नज़्म नस्क पर तफसीली इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला कर लिया गया है कि पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। सरकारी गाड़ी कानून से बालातर नहीं, क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वज़ीर आला ने पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज मुनज़्ज़म बनाने की हिदायत की। हादसात में जाबाग अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक कर लिया गया और ये फैसला किया गया कि मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा, मैरिज हॉल को पार्किंग का इंतजाम करना होगा। सुबह पंजाब में कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त फैसला कुन क्रैकडाउन होगा। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। स्मोक पर काबू पाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। बर वक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तालीम दोस्त पॉलिसियों का समर तलबा और तालबात तक पहुँचने लगा है। पीपी 168 में तालीमी तरक्की के रोशन संग मील के हवाले से गोपराय स्कूल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर खेल और एनर्जी मलिक फैसल अयूब खोकर ने गोपराय स्कूल में इजाफी क्लास ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया। मज़ीद तफसीलात लाहौर से नुमाइंदा NTN न्यूज़ हसन इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की तालीम दोस्त पॉलिसियों के समर से तलबा और तलबात मुस्तफीद होने लगे। PP 168 में तालीमी तरक्की का रोशन संग मील के हवाले से गोपेरे स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ डेवलपमेंट उमैर सैफ खोकर ने खसूसी शिरकत की। वज़ीर खेल और एनर्जी फैसल अयूब खोकर ने उमैर सैफ और सुकलैन यूसुफ की तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। गोपेरे स्कूल में इजाफी क्लास ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया और वज़ीर खेल और एनर्जी ने स्कूल में सोलर पैनल्स नस्ब करने का भी ऐलान कर दिया। अलावा अजीम मलिक फैसल अयूब खोकर का कहना था कि गोपेरा स्कूल की मुकम्मल अपग्रेडेशन भी की जाएगी। सूबाई वजीर ने गोपेरा स्कूल के प्रिंसिपल जैन मकसूद की तालीमी खिदमात और तलबा और तलबात से मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि जदीद रोशन और मेयारी स्कूलों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। PP 168 में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। अवाम से किए हुए तरक्की के तमाम वादे पूरे करके ही दम लेंगे। कैमरामैन असद जट के हमरा हसन इफ्तिखार डोगर, NTN न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोर्ट ग्रैंड में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल 2025 का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका मकसद सूबे के भरपूर सकाफती विरसे, रिवायती दस्तकारी और फनकाराना महारत को उजागर करना है। महकमे सकाफत हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा फेस्टिवल 30 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला का इस्तकबाल वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, सेक्रेटरी सकाफत खैर मोहम्मद और दीगर सीनियर हुकाम ने किया। मुराद अली शाह ने फीता काटकर फेस्टिवल का बाज़ाबिता इफ्तिताह किया। 100 से ज़ायद स्टॉल्स का दौरा किया, जहां उन्होंने हुनरमंदों से मुलाकात की और उनके फ़न को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध की सकाफत और फ़नून ही हमारी शनाख्त है। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल न सिर्फ हमारे सदियों पुराने विरसे को फ़रोग़ देता है, बल्कि मकामी कारीगरों की तख्लीक की सलाहियत, ख़ास तौर पर ख़वातीन की दस्तकारी को भी नुमायां करता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बना रही है। हुकूमत सिंध हमेशा ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ उठाती है, जिद्दोजहद करती। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहला विमेन बैंक बनाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन को मुफ्त ज़मीनें दी थीं। सीनियर सूबाई वजीर ने भी कहा कि पहले ख़वातीन शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवाती थीं। सूबे में डाटा जमा करके ख़वातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया सैलाब के दौरान 21 लाख घर बना के मंसूबा दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम SPHF सर्विस एक स्कीम नहीं बल्कि एक समाजी इनकलाब है। अब तक 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी। 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके। मजीद 6.5 लाख लोगों की तामीर तकमील के करीब है। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि प्रोग्राम के जरिए अब तक 10 लाख अफराद के लिए रोजगार के ज़राए पैदा हुए, जबकि 9 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालकाना हुकूक दिए जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मरहूम की साहिबजादी को पाकिस्तान वापसी की दरखास्त पर उनकी 20 यौम की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाको पर मुश्तमिल आईनी बेंच के रूबरू साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मरहूम की साहिबजादी की पाकिस्तान वापसी की दरखास्त की समाअत हुई है। नैब और सरकारी वकला की जानिब से दरखास्त की मुखालिफत की गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप नहीं चाहते कि दरखास्त गुजार या मफरूर मुलजिम पाकिस्तान वापस आए। जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों ने रिमार्क्स में कहा कि आपने दरखास्त गुजार के टिकट की कॉपी पेश नहीं की कि वो कहाँ से और कब आना चाहती हैं। आमिर रजा नकवी एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि दरखास्त गुजार अमरीका में हैं और मुतालिका अदालत में पेश होने के लिए 8 से 10 हफ्तों की मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इतनी तवील मोहलत नहीं दी जा सकती। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि दिसंबर में टिकट्स महंगे और सीटें भी होती हैं, सीटें भी दस्तयाब नहीं होती। आईनी बेंच ने सनम दुरानी की 20 यौम की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी है।